Hello and welcome, my dear friends. Today the topic is about IUPAC nomenclature of Spiro compounds. Last time we talked about bicyclo compounds. This is the next lecture, probably the last lecture of IUPAC system, that is the Spiro compounds. So what are Spiro compounds? When two rings are fused at a single carbon atom. When two rings are fused together at a single carbon atom, then the compounds formed are Spiro. For example, this is one ring and this is another ring. This is cyclopropane, this is cyclopentane, and they are fused together at carbon one only, single carbon only. So it means that this is the carbon which is common to both rings, and this is the compound called as Spiro compounds. Spiro compounds are those compounds in which two rings are fused together at a single carbon atom. Bicyclo compounds we talked about, in which we said that it is the compound when two rings are fused at two carbon atoms. So here it is only at single carbon atom, we call it Spiro compounds. Now, how do we name these compounds? How do we name these compounds as far as IUPAC nomenclature is concerned? So we are having the name here. So they are named as. Before naming, I must tell you one more thing, that this is the atom called as Spiro atom. The atom which is common to both atoms, the atom which is common to both rings is basically called a Spiro atom. This is called as Spiro atom. Now, Spiro compounds are named as. Spiro compounds are named as. पहले आपको prefix लिखना है Spiro. So you have to write Spiro first. Then in square bracket you find the number of carbon atoms. Number of carbon atoms in two rings except Spiro atom. In descending order. Sorry, in ascending order. Descending order हमने बात की थी in bicyclo compounds, in ascending order. Separated by full stop. Separated by dot, मतलब full stop. Then you have to write hydrocarbon name. Hydrocarbon name. So this is how you name Spiro compounds. So पहले आपको Spiro लिखना है. इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन टू रिंग्स. स्पाइरो एटम के बगैर उनको डॉट से आपको सेपरेट करना है. देन यू हैव टू राइट हाइड्रोकार्बन नेम. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेंगे. यहां आपके पास ये एक स्पाइरो कंपाउंड है इन विच वी हैव दिस इज द कार्बन विच इज बेसिकली स्पाइरो एटम. नाउ अगर आप देखेंगे नेम इस कंपाउंड का, सो यू कैन राइट हियर स्पाइरो फर्स्ट. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन टू रिंग्स. इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, बिकॉज यू डोंट हैव टू काउंट दिस स्पाइरो एटम. यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट स्पाइरो एटम. सो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन टू रिंग्स एंड राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें कितने हैं, 1 और 2 है. एक्सेप्ट स्पाइरो, सो 1 और 2 ही है. सो इट्स 2 डॉट 1 2 3 4 2.4. So this is the number of carbon atoms in two rings except Spiro atom in ascending order. Ascending order के हिसाब से लिखना है, और इनको जो सेपरेट करना है by dot, that is full stop, that is here. उसके बाद हाइड्रोकार्बन नेम. अब देखिए कितने कार्बन से इन टोटल, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, मतलब हेप्ट आएगा एज वर्ड रूट. सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन आएगा एज प्राइमरी सफिक्स. सो दिस इज हाउ यू नेम स्पाइरो कंपाउंड्स. सो स्पाइरो 2.4 हेप्टेन. नाउ अगर किसी भी जगह, सपोज यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी जगह आपका
डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फॉर एग्जांपल आपका जो है कोई सबोचोंट अटैच हो, तो उस सबोचोंट को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन जानने के लिए आपको पता होना चाहिए हाउ टू नंबर दिस चेन। सो नंबरिंग कैसे करते हैं इस स्पाइरो कंपाउंड्स में? सो वी शुड राइट हियर नंबरिंग इज डन फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू स्पाइरो एटम। मतलब आपको उस कार्बन पे नंबरिंग करनी है स्टार्ट विच इज नेक्स्ट टू स्पाइरो एटम, देन गो टू स्मॉलर रिंग एंड देन टू लार्जर रिंग। फिर आपको स्मॉलर रिंग की ओर जाना है, उसके बाद जो है आप जा सकते हैं टू द लार्जर रिंग। दिस इज हाउ यू नंबर इट। फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपके पास ये कंपाउंड है, दिस इज द स्पाइरो एटम ओवर हियर, दिस इज बेसिकली अ स्पाइरो कंपाउंड। देखिए ये एक स्पाइरो एटम है, ठीक। आपको नंबरिंग करनी है स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट स्पाइरो। अब स्पाइरो एटम का नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सो यू हैव टू नंबर इधर फ्रॉम दिस और दिस। You cannot number these two because you have to number it next to spiro atom. Then go to the smaller, मतलब ये है कि आपको हमेशा नंबरिंग करनी है उस वाले नेक्स्ट कार्बन से जो स्मॉलर रिंग के हैं, because you are going to smaller ring then to larger, means आपको पहले वो वाले नेक्स्ट कार्बन पे नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो स्मॉलर रिंग के हैं। दिस इंपॉर्टेंट, मतलब यू कैन नंबरिंग इधर फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन, नॉट फ्रॉम दिस कार्बन, नॉट फ्रॉम दिस कार्बन। व्हाई? बिकॉज दिस इज द लार्जर रिंग। सो स्मॉलर रिंग के जो नेक्स्ट वाले कार्बन्स हैं, नेक्स्ट वाले किसके? नेक्स्ट स्पाइरो एटम के, वहां से अपना नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द IUPAC रूलिंग। सो यू कैन नंबर इट हियर 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6 and then 7. Now let's have some example. यहां पे हम डबल बॉन्ड डालते हैं, ठीक। अब दिस द स्पाइरो एटम, इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग विल ऑलवेज यू डन फ्रॉम नेक्स्ट टू कार्बन टू द स्पाइरो एटम। तो ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है, लेकिन इनसे हम नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये लार्जर रिंग है, स्मॉलर रिंग की आपको देखना है। सो वी विल गो फॉर दिस 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7। 4 आप यहां से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का जो नंबर आएगा वो फिर 7 आएगा, इसीलिए आप यहां से जाएंगे 4 करके टू गेट द लोवेस्ट नंबर फॉर डबल बॉन्ड। सो व्हाट इज द, देयर इज नो सबोस्टिट्यूएंट अटैच्ड टू इट, सो डायरेक्टली आपके पास आएगा स्पाइरो। देन इसमें कितने कार्बन? 2 है, 2 डॉट, इसमें कितने? 1 2 3 4 है, 2 डॉट 4। देन व्हाट इज द वर्ड रूट? हेप्ट। इस वक्त एन नहीं आएगा, इन आएगा, बिकॉज देयर इज डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 4, सो इट्स 4 इन। दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, दिस इज द स्पाइरो एटम ओवर हियर। यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहां पे भी आपका मिथाइल ग्रुप है, यहां आपका डबल बॉन्ड है, तो यहां आपका जो है OH ग्रुप है। दिस इज द कंपाउंड, यू हैव टू नेम इट। सो यू विल नंबर इट फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू स्पाइरो एटम, लेकिन जो स्मॉलर रिंग है, स्मॉलर रिंग इज दिस, सो यू विल डू इट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। आप यहां से भी कर सकते हैं नंबर 1 नंबर 2, लेकिन उसके लिए क्या होगा, इस कार्बन का, इस मिथाइल सबस्टिट्यूएंट का 2 नंबर आता है, इसका 3 नंबर आता है, तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो नहीं होता, इसीलिए यहां से नंबरिंग करते हैं हम। बिकॉज देयर आर 2 वेज, यू कैन ईदर नंबर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। अगर आप यहां से करते तो इनका जो है 2 और 3 नंबर आता, 2 + 3 = 5। अगर यहां से करते हैं 2 + 1 = 3। सो लोवेस्ट सम रूल आपको फॉलो भी करना है। ऑल दैट रूलिंग विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेवरल लेक्चर्स, यू प्लीज गो थ्रू देम and you will understand all these ruling and IUPAC nomenclature also. So 1 2 3 then 4 then 5 then 6 then 7 8 and 9. Now पहले आपको सबस्टिट्यूएंट्स को नाम लिखना है। सबस्टिट्यूएंट इज मिथाइल ओवर हियर, मिथाइल ओवर हियर, सो वी हैव 1, 2 डाइमिथाइल। सबस्टिट्यूएंट्स का नाम आ गया, अब स्पाइरो आएगा। अब इसमें कितने कार्बन? 1 2 3, इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 3.5। देन व्हाट इज द वर्ड रूट? वर्ड रूट इज 9, 9 मीन्स नॉन। देन
अब एन नहीं आएगा बिकॉज 4 पे इन आता है, सो 4 इन। बिफोर वी राइट इन बिकॉज यहां पे 5 पे ऑल है, तो 5 ऑल। ओ इज वॉवल, so we have to drop E from here as talked about earlier. So 1,2-dimethyl spiro 3.5 non 4 in 5 all. This is the name of compound. Next example हमारे पास है, यहां से हम डालते हैं Br, यहां से आयोडीन, यहां से OH, तो यहां से आपका डबल बॉन्ड है, तो यहां से आपका जो है कीटोनिक ग्रुप है। अब इसका आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग विल ऑलवेज फ्रॉम लोवेस्ट रिंग फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन। अब जो है इसमें भी सबोचूंट है, इसमें भी सबोचूंट है। आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। इसका 1 2 3 आता, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा। अगर यहां से करेंगे इसका 1 आएगा, इसका 3 आएगा। सो लोवेस्ट सम रूल दोनों हिसाब से 4 आएगा, बिकॉज इसका अगर 1 करेंगे इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। 3 + 1 = 4। अगर यहां से करेंगे 1 2 3, 3 + 1 = अगेन 4। सो लोवेस्ट सम रूल यही पे आता है। अब मसला यह है कि आप किसको 1 लिखेंगे। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हिसाब से चलते हैं। इट इज बी, बी इज ब्रोमो, इट्स आई इज आयोडो। सो वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 then 3 then 4। अब देखिए हम यहां से भी जा सकते हैं 5 6 7 8 करके, हम यहां से भी कर सकते हैं 5। अब कीटोनिक ग्रुप हैज प्रेफरेंस ओवर दैट ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप बिकॉज कीटोनिक ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा यहां। So we'll go with this one. So it's 5, it's 6, it's 7, then 8. ठीक। अब आपको सबोचूंट्स का नाम लिखना है। सबोचूंट ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो बाकी हैं वो सबोचूंट्स बनेंगे। इसका B आता है, so B will come first, then I, then H, then I. So we have 1 bromo, 8 hydroxy, alphabetical order, then 3 iodo. Then there is Spiro now. Spiro के बाद में इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, so 3 dot 1 2 3 4 4। Then what is the word root? Oct। N नहीं आएगा, इन आएगा। 4 पे इन है, so 4 in 5 on। This is how you name it. This is the name of compound. खाली जो इतना है स्पायरो, ये जो है ना, ये नाम आता है टू द स्पायरो कंपाउंड्स। बाकी जो रूलिंग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो चलना है, और अगर ओ आएगा, अगर सेकेंडरी सफिक्स का आपका वॉवल स्टार्ट होगा तो यू हैव टू ड्रॉप ई। वो नॉर्मल रूलिंग आपको फॉलो करनी है जो हमने अभी तक राइट फ्रॉम लेक्चर 1 से पढ़ा है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे यहां। सो वी हैव हियर वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज इस पे COOCH3 है। देन वी हैव हियर methyl group, then we have here methyl group, then we have here double bond, then we have here OH। तो कैसे नाम देंगे आप, सीधी सी बात है, आप नंबरिंग करेंगे फ्रॉम दिस कार्बन, दिस द स्मॉलर, दिस द लार्जर रिंग, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप B है, तो यहाँ से 1 नहीं आएगा, यहाँ से 1 आएगा। इट्स 2 then 3 then move 4। अब यहाँ से अगर करेंगे, यहाँ से सबोचूंट क्लोजर आता है, तो 5 and 6 5 6 7, यहाँ से ये अगर यहाँ से आप 5 करेंगे, इस सबोचूंट का 5 आएगा, इसका 6 आएगा डबल बॉन्ड का, इसका 7 आएगा। अगर यहां से चलेंगे इट्स 5 and then 6। अब क्या करेंगे आप, अब OH ग्रुप जो है देखिए 5 और 6, OH ग्रुप का 6 आता है। अगर यहां से चलेंगे इट्स 5 and 6 and 7, तो क्या होगा, इसका बड़ा नंबर आएगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस। सो वी हैव हियर 5, वी हैव हियर 6, देन 7, देन 8। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। बेटर नंबरिंग विल बी दिस वन, 5 6 7 and 8, क्योंकि सबोचूंट ये 2 है, इनका लोवेस्ट नंबर आएगा। अगर आप देखेंगे 5 + 7 is 12। अगर यहां से करेंगे, यहां से इट्स 5 then 6 then 7 then 8, 8 + 6 is what 14। सो इसका ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से ये नंबरिंग हम करेंगे। सो व्हाट इज द
what will be now the name? It's here 3 पे methyl है, 5 पे methyl है, so 3 पे methyl, 5 पे methyl. So what we'll do is 3,5 dimethyl. Then you have 3,5 dimethyl. Then you have here hydroxy also. यहाँ भी hydroxy है तो hydroxy पहले आएगा. So we will name it like this. Alphabetical order के हिसाब से नाम आएगा. इसका hydroxy है H, इसका M है methyl. पहले ये ester ग्रुप है. ester ग्रुप का alkyl ग्रुप जो वो पहले आता है. So ester ग्रुप का जो alkyl ग्रुप है, this comes first. So methyl first आएगा. Then there is 7 hydroxy. Then there is 3,5 dimethyl. Then there is Spiro. Then 1 2 3 carbon 3.4. Then you have the word root, that's oct. Then 6 पे 7 पे 6 पे ene है, 6 पे ene है. Then 1 पे क्या है? Carboxylate. Because I told you earlier that जब भी आपके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे and they are connected to ring, they are attached to ring, उनका नाम क्या होता है? I told you many a times this one that अगर आपका suppose aldehyde group है, if you have aldehyde group attached to ring, it will be carbaldehyde. If it is carboxylic acid group, it will be carboxylic acid group. नाम ऐसे ही आएगा. अगर आपका suppose COX है, it will be carbonyl halide. अगर acid halide होगा तो it's carbonyl halide. अगर CONH2 होगा तो carboxyamide आएगा. carboxyamide यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है many a times जब हमने बात की थी, चाहे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स या फिर आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बोले थे या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जब पढ़े थे हम लोगों ने, तो इट बी कार्बोक्सिलेट, एस्टर कार्बोक्सिलेट. लेकिन इसका जो R है दैट इज नेम्ड फर्स्ट, दैट इज टू बी नेम्ड फर्स्ट. तभी हमने एस्टर ग्रुप का मिथाइल पहले लिखा. तो ये जो है ये कुछ या साइनाइड अगर होगा तो कार्बोनाइट्राइल आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा. So all these have been talked about earlier in previous videos also. You can watch these videos. The links have been placed in the description. आप वो देख सकते हैं. We'll take up the last question, last example that is here. दोनों में 5-5 कार्बन है. अब आपका जो है यहाँ पे आपका सपोज मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आपका कीटोनिक ग्रुप है. Here we have again methyl group. Then you have here OH group. Then you have here Br. Then you have here I. Then you have here double bond. ठीक. Then ये कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है. So you have to number this chain first. Numbering will be done from one of the bridged carbons, one of the carbons which is next to Spiro. That's 1, 2, and then 3, 4, and then 5, 6, 7, 8, and 9. अब नंबरिंग हो गई. आपको नाम लिखना है. ये जो है कीटोनिक ग्रुप बिकम्स द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. बाकी सारे बनेंगे सबस्टिट्यूएंट्स. इसका M आएगा, M मिथाइल. इसका B आएगा, B विल कम फर्स्ट. सो आपका आएगा 6 ब्रोमो. फिर H आएगा 9 हाइड्रोक्सी. फिर आएगा 7 आयोडो. फिर आएगा 1,3 डाईमिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से. उसके बाद स्पायरो आएगा. Then there is 1 2 3 4 1 2 3 4 4.4. Then there will be word root that is none. Then there will be 5 in. Then there will be 2 on. So this is how you name this compound. I hope you understand it. So how to name bicyclo compounds and how can we name these Spiro compounds? I hope you understand it. You will practice it many a times and watch this video to get this understanding clear. And I hope you are liking my videos, and I wish you subscribe it and share it as much as you can. Till then, I'll come up with more such videos. Hopefully this was probably the final lecture of IUPAC nomenclature. I will either switch on to some other unit which may be perhaps organic or some inorganic, whatever will be taking up.
आप भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे विच टॉपिक टू चूज और विच चैप्टर टू स्टार्ट विद। आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।